Yes, sir. Okay. So the entity is basically the independent value which exists independently. Means and it represents some real world or object. Okay, it the real world or object may be a person, place, things like that. For example, if we are talking about a bank, then inside the bank, what are the objects are available? Bank employee, then the currencies. Okay, so these are the different things which may be considered as the entity. Okay, basically the entity is a particular entity instance is a particular member of an entity. If there is an entity and there are many particular members of an entity, that is called entity instance. So if we are talking about the entity, two things we have to remember. First one is entity, that is any object, and then the entity is instance, that is member of that object. Okay, and next is weak entity. For example, if any entity that is dependent on any other entity, then this relationship is called parent child relationship, and here the parent is considered as the strong entity and the child is a weak entity. You just learn the theory, will come to the practical part as well of this. We'll see the example of a weak entity and then a strong entity. If you can think, you just tell me, do you have any example about the parent entity and the child entity? Can you imagine? No idea, sir. Okay. Anyone other? Sir, basically, child entities are those entities which are surrounded by a dashed line or a double um, circulated line like this, and Hmm. That is the they haven't representation. haven't any That is the primary. way to represent a weak entity. For example, if we want to represent an entity, we will take a rectangular. If we want to take a weak entity, we'll take double rectangular. But is there any example? Yes, sir, I don't know. Okay, if we have uh, the course and faculty. Okay, so we'll see next the attributes. Attributes are generally represented by the ovals and they are connected to the entity. Okay, attributes are connected to the entity. So at the top level, the entity is there. Then we have an entity, maybe a strong entity, a weak entity. Then from that entity, many attributes can be related. For example, if we have an entity bank employee, then there are many attributes can be attached to the bank employee entity. For example, the employee code, okay, the employee name, the employee address, employee ID, employee Aadhaar, employee email. These are the attributes. Okay, मीन्स अगेन अगर मेरे पास एक एंटिटी हो, एंटिटी किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो एम्प्लॉय को अगर मैं सेंटर पॉइंट पे रखूं तो वो मेरा हो जाएगा एंटिटी, और उस एम्प्लॉय के जितने भी फीचर्स हैं, फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? उसकी हाइट हो सकती है, उसकी उसका नेम हो सकता है, उसका ईमेल हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, देन एम्प्लॉयी कोड, देन एम्प्लॉयी आईडी. So these are the things which are basically called the attributes. And attributes can also be of different types, like simple attribute which cannot be divided, and the composite attributes which can be divided. For example, if we are talking about the employee ID, so employee ID is a single value and it cannot be divided into uh, simpler parts. Okay, it cannot be splitted. So the employee ID would be considered as a simple attribute. And if we have a name, then we can split the name into first name, middle name, and the last name. So the name would be composite. ठीक है, मेरे पास समझिए फिर से, एंटिटी कोई पर्सन जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स जो इस उस एंटिटी के फीचर्स हो गए, जैसे नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये तो हो गया मेरा एंटिटी और एट्रीब्यूट.
अब आते हैं एक एक सेकंड लेवल पे कि एट्रीब्यूट कितने तरह के हो सकते हैं। तो सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट जिसको ब्रेक ना किया जा सके, कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर ब्रेक कर सकें। जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गया, वो मेरा हो गया सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। उसका आधार नंबर वो मेरा सिंपल एट्रीब्यूट हो गया, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने ब्रेक कर दिया आधार की वैल्यू को, तो उसका वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। पैन कार्ड एक सिंगल वैल्यू होती है, उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ ऐसे वैल्यूज हों, जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, जैसे कि हमारा नेम हो गया, नेम में हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। क्या इसी तरह से आप कोई और कंपोजिट एट्रीब्यूट सोच पा रहे हैं? यस सर। क्या सर बताइए? एड्रेस। यस, परफेक्ट। सर एड्रेस। एड्रेस, बिल्कुल, बिल्कुल एड्रेस को। परमानेंट एड्रेस एंड करेंट ओके, परमानेंट एड्रेस एंड देन करेंट एड्रेस। करंट एड्रेस करंट और एड्रेस। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। इसको फर्दर हम और यस कितना ब्रेक कर सकते हैं, ये बताइए? सर, टेम्परेरी हो सकता है। नहीं, नहीं, मतलब मैं परमानेंट एड्रेस को ही टेम्परेरी, और कितना ब्रेक परमानेंट, कर सकता हूँ आगे? फिर सर वो सिटी आ जाएगा, स्टेट आ यस, जाएगा, फिर बिल्कुल। कंट्री। एड्रेस लाइन, देन द लोकेलिटी, यस लैंडमार्क्स, सर। पिन कोड, स्टेट, कंट्री। सो इस इन दिस वे वी कैन फर्दर, हम लोग इसको और भी आगे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस लाइन और लैंडमार्क ऐसे करके, एड्रेस लाइन को फिर हम फर्दर कर सकते हैं कंट्री में, कंट्री को फर्दर कर सकते हैं हम लोग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव सिंगल वैल्यूड एंड multiple valued. Single valued, that attribute can take only a single value for each entity. For example, age, मतलब ऐसा कॉलम, ऐसा एट्रीब्यूट जो केवल सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता हो। जैसे अगर मेरा कोई एम्प्लॉय है, तो उसका एक सिंगल एज होगा, राइट। क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जिसका एज 5 साल, सॉरी 50 साल भी हो और 51 साल भी हो? इज इट पॉसिबल? नो सर। No. So the age can be considered as a single valued. ठीक है। Any other example? सर ब्लड ग्रुप। Blood group, perfect. Any other example? सर डेट ऑफ बर्थ। Date of birth is there, correct. And Aadhaar card. सर रजिस्ट्रेशन नंबर और पिन नंबर, आई थिंक। Address pin number we can say, but it should not. Pin can be there, pin code. Okay. And if we will talk about the multi-valued, it means any attribute or the entity's attribute which can be multiples for that entity. For example, if there is an employee, is it possible that that employee had more than one mobile number? यस सर। Okay, so the mobile number column would be multi-valued, right? यस सर। Okay, so till now what we had seen, entity क्या होता है? कोई एक ऑब्जेक्ट जिसके अराउंड हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होना है, राइट। अब मेरा स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी क्या है? वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है? Weak entity which is Sir, the weak dependent. entities are those Yes, yes. so strong entities are independent entities, and the weak entities are the dependent entities which depend on their parent entity. Okay, and we just talk about simple attribute and composite attribute. So what is a simple attribute? That cannot be divided further, right? Yes, sir. And what about the composite attribute? Composite attribute can be divided in or it can be splitted. For example, what is the example of a simple attribute? Sir, Aadhaar number, Aadhaar number. Okay. And what PAN about the card, composite? Address, sir, city, address.
address and name. Okay, then we had seen single valued and multi valued. What is the single valued? Sir, single valued are those entities which can use to store a single value in it. राइट, जहां हम केवल एक वैल्यू जो है या किसी एक सेल की भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हम एक वैल्यू को ही उसमें रख सकते हैं, एक मीनिंगफुल वैल्यू बेसिकली। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक सिंगल कॉलम हो तो मैं किसी का एज जो है वो कॉमा करके उसमें नहीं लिख सकता हूँ, राइट? मैं उसके किसी का एज में ये नहीं लिख सकता हूँ कि 51, 55, मतलब वो 51 का भी है, 55 का है, क्या ये मीनिंगफुल है? नहीं। लेकिन अगर मेरे No, पास एक sir. मोबाइल नंबर का कॉलम है, तो मैं उसमें कॉमा सेपरेटेड कई सारे रख सकता हूँ। एक मोबाइल नंबर, कॉमा करके दूसरा मोबाइल नंबर, कॉमा करके तीसरा मोबाइल नंबर, ठीक है? तो इस तरह से हम मल्टी वैल्यू रख सकते हैं, जिस चीज़ के जिस एट्रिब्यूट के रिलेटेड मोबाइल नंबर का जैसे एट्रिब्यूट हो गया, तो उसमें हम मल्टीपल वैल्यू कॉमा सेपरेटेड रख सकते हैं। सो दैट इज़ अ मल्टी एट्रिब्यूट, ओके? नाउ वी हैव इस स्टोर्ड एट्रिब्यूट, एट्रिब्यूट व्हिच नीड टू बी स्टोर्ड परमानेंटली, okay, and derived which comes from other attributes। ठीक है, derived का मतलब ये है जो कहीं और से अपना जनरेट कर सकते हैं जिसको, ठीक है, या कहीं और से फीचर को वो यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है तो क्या मैं एज एट्रीब्यूट को कैलकुलेट कर सकता हूँ? Yes, sir. राइट? सो यस डेट सर। ऑफ बर्थ और करेंट डेट का अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसका एज निकल जाएगा। तो एज इज बेसिकली डिपेंडेंट और बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ कैन बी स्टोर्ड एट्रीब्यूट and the age can be derived attribute. Now we can represent the relationship between the entities or between the attributes. Okay, so basically we the relationship is basically presented between the entities and are called relationship. If we have to show the strong relationship, we will use diamond of single line, and if we have to use weak relationship, we can use multi line, or sorry, double line diamond shape. Okay, सो सी वी हैव एन एग्जांपल। आप लोगों में से कोई मुझे इसमें से ये बता सकता है कि एंटिटीज कौन-कौन से हैं? Sir, the rectangle one. एम्प्लॉयी, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट दीज आर द एंटिटीज। ओके, एंटिटीज। एट्रीब्यूट बाकी ये जो ओवल सिंबल ओवल में हो गए। एम्प्लॉइज सर, हाँ, एम्प्लॉइज। जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, आईडी, जेंडर, ठीक है? देन सिंस, डी नंबर, नेम, लोकेशन, दीज आर द attributes. And what are the relations? Works in, रिलेशन manager, works in, manager, works on hours, and dependent of, these are the डिपेंड्स ऑफ। relationship, यस सर। right? Department has a relationship with project. Employee प्रोजेक्ट has a relationship with project, वर्क that the employee प्रोजेक्ट। works some hours on the project, right? अब मुझे इसमें से ये बताइए कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन से हो सकते हैं? क्या है यहाँ पे कोई भी? Sir, यस address, सर, sir. एड्रेस है सर। एड्रेस, ओके, राइट। एड्रेस है सर। Location. स्ट्रॉन्ग Location. जेंडर, स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट, जेंडर भी हो सकता है सर। जेंडर नो, जेंडर इज द मल्टी बोल रहे थे सर, मल्टी Sir, रिलेशन सर। single valued होगा। जेंडर मल्टीपल कैसे हो सकते हैं? आदर इट में बी So, मेल, sir, फीमेल और ट्रांसजेंडर, बट ओनली दीज दो थ्री पार्ट हो कैन गया बी मेल पॉसिबल। फीमेल, तो कौन कौन से मेल है कौन कौन फीमेल है इसमें कैसे पता नहीं नहीं चलेगा? नहीं 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 नहीं, आपको एक सिंगल एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग में सोचना है कि अच्छा अगर अच्छा, मेरा एक सिंगल एम्प्लॉय है तो उसके कितने जेंडर हो सकते हैं? मे बी आइदर उसका मेल एक ही और होगा। फीमेल और ट्रांसजेंडर, ओनली दीज थ्री कैन बी पॉसिबल, राइट? ज्वाइनिंग ऑफ टेटूज। सो दिस इज एन ईआर डायग्राम। इट्स ये एग्जाम में जनरली जो है वो पूछा जाता है एट्रीब्यूट्स, जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे
वो बेसिकली एट्रीब्यूट रिलेटेड आते हैं, जैसे कि मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड कौन सा है, डिराइव्ड क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपको बेसिकली देखनी है, और ये आपका जो है वो प्रैक्टिकल सेशन है जो आपको कंप्लीट करके फिनिश करके आपको अपने एंड पे फिनिश करना है इसको, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग इसको अभी थोड़ा स्टडी करते हैं, क्या क्रिएट टेबल बनाने का सिंटैक्स आप लोग समझ चुके हैं? यस सर। ओके, अगर वैल्यू इंसर्ट करना रहा कर लेंगे? यस सर। ठीक है। अगर मेरे पास कोई टेबल हो, उसमें से मुझे सारे रो और सारे कॉलम सिलेक्ट करने हों, कर सकते हैं? यस सर। कैसे करेंगे? सर सेलेक्ट कमांड का यूज करके, सेलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। स्टार फ्रॉम टेबल नेम, राइट? अब यस। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रो लेकिन सारे कॉलम करने हों, देन वी कैन यूज वेयर कंडीशन, यस सर। राइट? और अगर मुझे सिलेक्टेड कॉलम्स लेने हों और सारे रोज लेने हों, तो हम लोग वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे, केवल कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर देंगे सिलेक्ट के साथ, राइट? यस सर। सिलेक्टेड कॉलम्स का मतलब क्या हो गया, मेरे पास 10 कॉलम है, उसमें से मुझे 3-4 कॉलम्स ही पिक करने हो, ठीक है? जैसे जैसे कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। यस, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल विदाउट एनी वेयर कंडीशन, ठीक है? अगर सारे रो गेट करने हों, राजू, विकास, समझ रहे हैं आप? समझ रहे सर, क्योंकि हम थोड़ा बहुत क्लास तो नहीं किए थे तो। नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर नहीं लेकिन समझ ऐसे में आ भी रहा है एक्चुअली पूछ में सकते हैं। समझ रहे हो जो बोल रही हैं, तो थोड़ा उनसे भी समझ रहे हैं जो बोल रही हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई टेबल है, ठीक है? स्टूडेंट टेबल है, उसमें मेरा है यस सर। नेम, रोल, एड्रेस, ठीक है? तो मैं स्टूडेंट टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ और उसमें इसके अगेंस्ट कुछ रिकॉर्ड इंटर कर सकता हूँ ना, उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड। यस सर। अगर मुझे सारे रो सिलेक्ट करके लाने हो, ठीक है? तो सारे रो सिलेक्ट करके लाने हो तो उसके लिए क्या कंडीशन आपके दिमाग, क्या क्वेरी दिमाग में आपके आएगी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारे रो सारे कॉलम आ जाएंगे। और अगर मुझे सिलेक्टेड रो लाने हैं तो मुझे वेयर कंडीशन में वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और अगर सिलेक्टेड कॉलम्स लाने हैं, जैसे मेरे पास है नेम, रोल, डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे केवल नेम लेके आना हो तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो वो सिलेक्टेड कॉलम हो गया। अगर मुझे डुप्लीकेट रो जो है वो हटाना हो तो उसके लिए कौन सा ये कीवर्ड सारा यूज तो करें? कमांड में करना पड़ेगा। मतलब क्वेरी लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल के लिए, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए है ये, अच्छा। यस सर। ठीक है? यस सर। एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर। यस, बताइए। सर ये ट्रिम का क्वेरी नहीं पता है, ट्रिम कब यूज होता है? ट्रिम होता है कि अगर जैसे स्पेस लिख दिया गया हो आगे या पीछे, जैसे मेरा मान लिया नेम है, आपने कई बार ये देखा होगा कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आगे और पीछे कई बार स्पेस अपने आप ऐड हो जाता है, देखा है आपने इस तरह से कभी? यस सर। हाँ, तो जब आप कोई सपोज कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आपका नेम है, आपने कहीं पे एमएस वर्ड से कॉपी किया तो आगे जो है स्पेस ऐड हो गया, लेकिन वो स्पेस जो है वो कंप्यूटर तो उसको कुछ वैल्यू मान के चलेगा, उसके लिए तो स्पेस भी एक वैल्यू है, राइट? यस सर। तो इसी चीज़ को जब आप फॉर्म वगैरह जैसे कोई फिल किए हैं, तो वहाँ पर जो है वो हर एक वैल्यू को ट्रिम कर दिया जाता है डेटाबेस में इंसर्ट करने के पहले, सो दैट अननेसेसरी का आगे और पीछे का स्पेस खत्म हो जाए, ठीक है? 1 मिनट। अब अगर मुझे एलिमिनेट करना हो डुप्लीकेट रोज़ किसी एक स्पेसिफिक कॉलम पे, तो कौन-सा कीवर्ड यूज़ करेंगे हम लोग? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट ओवर दैट कॉलम, राइट? यस सर। सॉर्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय आई थिंक। यस, ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय क्या होता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग। अगर हमें डिसेंडिंग करना है तो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करना पड़ता है। अच्छा, अगर मुझे किसी एक यस टेबल सर। से दूसरा टेबल बनाना हो तो कैसे बनाएँगे? सर वो क्रिएट अ न्यू क्रिएट टेबल कैसे? कमांड का यूज करेंगे। यस, क्रिएट टेबल एज क्रिएट
टेबल एज एंड सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जिस टेबल टेबल का से नेम। बनाना है, राइट। ठीक है, अगर मुझे हो, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपना वो डेटाबेस का बैकएंड में स्टार्ट हो रहा है, जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना अभी इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग एक बार देख ही लेंगे, जिससे कि वो क्लियर हो जाए। अच्छा, तब तक इसको अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं आपस में ही। अगर मुझे इंसर्ट करना हो किसी एक टेबल में दूसरे टेबल से, तो कैसे करूँगा? सेलेक्टेड करेंगे सर, फर्स्ट रो को मतलब फर्स्ट इंसर्ट टेबल को सेलेक्ट इंसर्ट करके दूसरे। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, देन ब्रैकेट में कॉलम स्पेसिफाई कर देंगे और उसके बाद वैल्यूज नहीं लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट और स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम अनदर टेबल, जो दूसरा टेबल है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे सारे रो रिमूव करने हैं, फिर किसी एक टेबल से सारे रो यानी सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है, तो थोड़ा नहीं लग तो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप कर देंगे और ड्रॉप तो पूरे टेबल को ही हटा देगा, डिलीट। तो नहीं तो डिलीट। और अगर स्पेसिफिक रो को रिमूव करना है, फिर वेट वेट यस सर। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग एक बार फिर से आज देखते हैं, जो हमने प्रैक्टिकल मैक्सिमम कल किए थे, एक बार आज फिर से उसको रिपीट करते हैं, सो दैट बिल्कुल आपको याद हो जाए। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आज आपको इवनिंग में प्रोवाइड हो जाएगी, जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो सबसे पहले हमारा कमांड क्या है? क्रिएट टेबल करने का। ठीक है, तो इसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं बताइए? हम लोग एक काम करते हैं, अपना एक लेकर चलते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट, अपनी रिक्वायरमेंट ये है, अपनी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल हो, इसमें कॉलम क्या हो जाएंगे? नेम, रोल एंड सपोज आईडी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिएट टेबल अगर हम करते हैं, क्रिएट टेबल, अगर मुझे टेबल क्रिएट करना हो, देन विल गिव क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ब्रैकेट में क्या क्या मेरा है? नेम है। ठीक है, सो विल डू नेम वेर कैर, सपोज हम लोग 100 कैरेक्टर्स का लेते हैं। अभी हम लोग इसको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में ब्रेक नहीं करते हैं, सिंपली नेम ले लिया। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने रोल ले लिया है, देन विल सी रोल इंट। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने ले लिया आईडी, और ये भी मैं ले लेता हूँ इंट। ठीक है, विल डू वन थिंग, आईडी को हम लोग प्राइमरी की ऐड कर देते हैं, और अब हम लोग इसको एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए क्या मेरा स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो चुका है? यस ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया, नेम रोल आईडी के साथ। प्राइमरी की का यस इंडेक्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स्ड होता है ये। ठीक है, अगला आपका क्या है? इंसर्ट सम रिकॉर्ड। इंसर्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? रिकॉर्ड को, इंसर्ट कमांड, अरे इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इंसर्ट कमांड को इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, स्टूडेंट देन वी हैव नेम, और विल डू वन थिंग, आईडी कॉमा नेम कॉमा रोल। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो एक रो रिकॉर्ड कर सकते, एक रो इंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। सपोज आईडी मेरा है 1, ठीक है, नेम मेरा हो गया सपोज विकास यादव, देन रोल नंबर वी कैन हैव, क्या कर सकते हैं, चलो ये भी हम लोग 1 रखते हैं, या 100 से शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा? नहीं अभी सर ठीक है? दिख रहा है। सर थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दीजिए। अभी ठीक है? सर ठीक है, तो हम लोग अब इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इंसर्ट किया, तो ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, एक तरीका तो ये बताया था, दूसरा क्या बताया था अगर आप लोगों को याद हो तो? ठीक है, मैंने कहा था यहाँ, सर इंसर्ट इनटू वैल्यूज। हाँ, कॉमा, ठीक है, यस सर। वैल्यूज सपोज 2, एक तो इंसर्ट हो चुका है 2, 3, सपोज विल डू वन थिंग, विल डू अदिति, देन वी हैव 1, देन वी हैव Raju, then we have 2.
ठीक है, अभी हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। count column does not match. ठीक है, वैल्यूज आपको एक बार लिखना है, बाकी आप जो है इसको मल्टीपल टाइम्स आप कॉमा सेपरेटेड दे देंगे तब भी रन कर जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू जब आप करते हैं, ये देखिए अभी पता चल जाएगा कि क्या हमारे यहाँ स्टोर हो चुका है। सो वी हैव So स्टूडेंट the from student टेबल। table ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं बना है, अभी हम लोगों ने क्या क्या किया है, ऊपर में क्रिएट पहले किया। इंसर्ट किया। हाँ, क्रिएट किया तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया। देन हम लोगों ने ये देखा कि अगर एक रो इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा रो एक ही बार में इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने 3 रो ऐड किए, इंसर्ट किए हैं, ये तीनों मेरे पास अवेलेबल हैं, राइट। यस यस। तो हम लोग अगला देखते हैं, आगे क्या था हमारा, सिलेक्ट ऑल रोज एंड ऑल कॉलम। तो उसके लिए तो हमारा सिलेक्ट एस्ट्रिक हो ही गया है। यस सर। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक ने क्या किया, हमारा सारे रो लेकर आ गए और सारे कॉलम्स लेकर आ सारे गया। टेबल्स। ठीक है, अब अगर करना हो कि सिलेक्टेड कॉलम्स ऑल रोज, सॉरी सिलेक्टेड रोज ऑल कॉलम। सिलेक्टेड रो का मतलब हमें कुछ कंडीशन लगाना है, एक रो का सारा कॉलम। हमें सिलेक्टेड रो लेकर आने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये लाना हो कि वेयर आईडी इक्वल्स 3, ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, राजू का सेलेक्ट होगा। सिलेक्टेड रो ऑल कॉलम्स। ठीक है, अब उसी तरह से मुझे हो कि सिलेक्टेड कॉलम्स एंड ऑल रोज लाना हो, तो मैं ये कंडीशन हटा दूंगा, तो मेरे सारे रो के लिए हो गया, सारे रिकॉर्ड्स के लिए। यस सर। और सिलेक्टेड कॉलम्स में मान लो मुझे केवल नेम या नेम कॉमा रोल लेकर आना हो, आईडी नहीं लाना हो। ठीक है, देन हमारे पास सारे रो आ गए और सिलेक्टेड कॉलम्स आ गए। ठीक है, अगला है मेरा इलिमिनेट डुप्लीकेट रोज ऑन स्पेसिफिक कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। चलिए आइए डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आईडी तो है प्राइमरी की आपका, ये तो नहीं करने देगा, तो इसको 4 कर देते हैं, बाकी हम लोग डुप्लीकेट रखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। अब मेरे पास क्या मेरे पास कोई डुप्लीकेट है, नो सर। क्यों नहीं है। सर है। ये सारा हटा दिए थे। ठीक है, देखिए विकास यादव 2 बार हैं, तो अब मुझे जो है, यस सर। अब मेरे पास 2 बार आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है कि इनको एलिमिनेट करना है कि एक ही बार आए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट देन डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट नेम कॉमा रोल फ्रॉम टेबल नेम। सॉरी टेबल। स्टूडेंट टेबल। टेबल। ठीक है, विकास यादव जो 2 बार आ रहे थे अब 1 बार आ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपको, अगर डुप्लीकेट्स हटाना हो तो आप डिस्टिंक्ट का यूज कर सकते हैं। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर करना हो, ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले इतना जो है आपको कॉपी एंड देन, मतलब कोई भी काम करेंगे तो स्टूडेंट टेबल को लेकर के चलना पड़ेगा हमको। हाँ, तो आप जिस टेबल को, मतलब जिस टेबल को आप यूज कर रहे हैं उसे तो लेकर चलेंगे ना। आप किसके ऊपर हाँ। क्वेरी परफॉर्म कीजिएगा, है ना। नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि बार बार नया नहीं बनाना पड़े। नहीं, एक काम करते हैं, मैं इनको एक डॉक्यूमेंट में स्टोर करते जाता हूँ आपका, सो दैट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए मैंने रख लिया अपने पास। ठीक है, अब अगर ये डिलीट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे थे कि सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब देखिए सपोज मेरा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, मुझे सपोज अभी पहले इसको गेट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है।
तो कोई भी एक कॉलम इसमें हम लोग पिक कर लेते हैं, जैसे सपोज नेम पे करते हैं, तो हम क्या कीवर्ड यूज करेंगे, ऑर्डर बाई नेम। Ascending gender. ठीक है, असेंडिंग का और डिसेंडिंग का मतलब समझते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। ऐसे Yes, sir. समझते कैसे नहीं सर? असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे कि अगर मैं आईडी पे करूं तो असेंडिंग करूंगा तो 1 2 3 4, और डिसेंडिंग करूंगा तो 4 3 2 1, राइट। 432 यस सर। तो ये हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग में डिस्प्ले करने के जैसे लिए। बड़ा ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया कि नेम के ऊपर असेंडिंग लगाया है और मैं इसको रन कर रहा हूँ, देन फर्स्ट केम अदिति, राजू एंड देन विकास। अब अगर यही मैं स्पेसिफिकली DESC कर दूं, ठीक है, तो ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आना शुरू हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब यस सर। अगला, यस यस बताइए क्या पूछा है। न पूछे कुछ नहीं सर, वही मतलब हम भी उसी में मिला रहे थे जो आप बता रहे थे। ठीक है, अगला है हमारा क्रिएट टेबल फ्रॉम ए टेबल। यानी कि अब अगर मुझे मेरे पास स्टूडेंट टेबल है और इसी से मुझे दूसरा टेबल क्रिएट करना हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या कमांड है, एक सिंगल कमांड जिसके थ्रू सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड क्रिएट अ न्यू टेबल, ऐसा कुछ। क्रिएट टेबल, टेबल मैं जैसे बनाता हूँ स्टूडेंट टेबल कॉपी, ठीक है, इतना बस। एज लेकिन सर वो हमको लग रहा है वो लेगा सेलेक्ट Select स्ट्रिप star. फ्रॉम स्टूडेंट टेबल लेगा। ठीक है, टेबल बन गया। एक बार हम लोग कॉपी टेबल को चेक करते हैं। सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, यस सर। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। एक काम करते हैं, जैसे अब सपोज हम लोग टारगेट लेते हैं कि हमें स्टूडेंट टेबल कॉपी के अंदर इंसर्ट करना है वो सारा डेटा फिर से जो स्टूडेंट टेबल में है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इंसर्ट इनटू बेस। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। स्टूडेंट टेबल। अब ये बताइए कि क्या ये करने देगा। क्यों नहीं करना देगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ करने देगा। यस सर। सर वैल्यूज तो डाले ही नहीं। नहीं, ये उसका एग्जांपल है कि अगर आप किसी एक टेबल में किसी दूसरे टेबल का डेटा आप अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, पुल करके दूसरे टेबल से डेटा लाकर किसी एक टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये उसका एग्जांपल है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये बताइए। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सर अगर हम पहला टेबल का कोई भी डेटा अगर डिलीट करते हैं तो दूसरा टेबल का भी डेटा नहीं डिलीट हो सकता नहीं नहीं, क्या यहाँ प्राइमरी कॉलम की वजह से कोई दिक्कत आएगी, प्राइमरी की वजह से। यस सर। ठीक है, देखिए सर मैं इंसर्ट प्राइमरी कर की। रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी, अच्छा स्टूडेंट टेबल कॉपी में जब इसने टेबल क्रिएट किया था तो प्राइमरी की ऐड नहीं किया था, है ना। है। इसने केवल स्ट्रक्चर लिया था, कंस्ट्रेंट कॉपी नहीं किया था, तो ये कर देगा, राइट। यस सर। यस सर अगर बट स्पेसिफाई हाँ स्पेसिफिकली अगर हाँ, अगर ये प्राइमरी प्राइमरी की की अगर होता नहीं तो नहीं करने देता, राइट। अच्छा, हम लोग कहाँ थे सर। कि कि किसी एक टेबल का डेटा उठाकर किसी दूसरे टेबल दूसरे में टेबल में इंसर्ट स्टोर कर। करने की बात कर रहे थे, है ना। यस सर। तो अब आप समझिए कि यहाँ से हो पाता है कि नहीं ये। यस सर। ये अभी हम लोगों ने किया ना, देखिए इसमें फिर से, अब इसमें यस कितने रो होने चाहिए, इसमें तो 3 थ्री क्यों होंगे, पहले थे 4, बाद में आपने इंसर्ट किए दूसरे टेबल से, तो अब 8 रिकॉर्ड्स होने चाहिए ना, नहीं समझे। यस सर समझ गए सर। सर सर पहले के 4 और अभी के 4। ठीक है,
इसमें बेसिकली दिखाने वाली बात ये थी कि आपको जो है एक टेबल से डेटा पुल करके दूसरे टेबल में इंसर्ट करने के लिए वो ट्रेडिशनल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, वो इंसर्ट इनटू समथिंग समथिंग करके जो कर रहे थे। ठीक है, यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट इज रिमूव ऑल रो। कैसे करेंगे? जैसे मेरा ये है, इसमें से अगर मुझे सारे रिकॉर्ड रिमूव करने हो, देन विल यूज तो delete command. ठीक है। बट क्या हम लोग रियल टाइम में जब हम लोग एप्लीकेशन लाइव एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं तो क्या डिलीट कमांड जो है वो रिकमेंड की जाती है? तो सर उसके लिए एक फ्लैग बनाना पड़ता है, उस फ्लैग में वैल्यू को स्टोर करते हैं फिर डिलीट करते हैं। ठीक है, उस फ्लैग में हम लोग कोई 0 1 अच्छा या ट्रू फॉल्स इस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं। तो डिलीट कमांड जो है वो यूज होता है किसके लिए? सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए। और अगर कोई स्पेसिफिक रूल रिमूव करना होता तो हम लोग वेयर कंडीशन लगा देते, राइट? यस यस। ठीक अच्छा है, सर, अगर एक क्वेश्चन था सर। बताइए। मान लीजिए कि किसी मतलब टेबल में किसी नाम को हमको मान लीजिए हाईलाइटेड करना है, जैसे राजू है तो राजू को हमको एक हाईलाइटेड मतलब बैकग्राउंड दे करके कोई कलर लगाना है, उसको हाईलाइटेड करना है, तो कैसे होगा सर? डेटाबेस में हाँ, अगर डेटाबेस में अगर किसी का नाम हमको हाईलाइट करना है तो ऐसा होता है क्या? जहाँ तक मुझे पता है डेटाबेस में ऐसा हाईलाइट करने का तो कोई फीचर होता नहीं है। आप उसका एट्रीब्यूट सेट कर मतलब सकते हैं, कोई कॉलम सेट कर सकते हैं कि एक्टिव इनएक्टिव, बट कलरफुल अच्छा, करने मतलब का इसमें तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, प्रोग्रामेटिकली मतलब आप ऐसा उसको लगा कि हमको कि सॉरी जैसे बताइए। HTML में करते हैं और नहीं, एक्सेल में करते हैं, एचटीएमएल हाईलाइट करते हैं। एचटीएमएल देखिए अलग चीज है। एचटीएमएल में भी आप सीएसएस की हेल्प से करते हैं, राइट? यस सर। वो वेब पेज हो गया, ये क्वेरी लैंग्वेज के लिए हो गया आपका। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप हमको टेबल, लगा कि यहाँ इसमें पे कहीं डेटाबेस हाईलाइट वाला टेबल, ऑप्शन दिया होगा तो। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डेटाबेस ये बैकएंड में काम करता है आपका। ये तो आप अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन अच्छा आपका अच्छा। जो भी डेटा डिस्प्ले होता है, आप जैसे आईआरसीटीसी का फॉर्म वगैरह भरते हैं रेलवे टिकट वगैरह के लिए, तो आपको क्या वहाँ पे टेबल और डेटाबेस दिखता है? नहीं नहीं दिखता है तो ना। ऐसा कुछ नहीं हाँ, दिखता है। उसका रिकॉर्ड्स जो आता नहीं। है वो आपके सामने एचटीएमएल में डिस्प्ले किया जाता है, राइट? अच्छा हाँ। ठीक है, चलिए आगे आते नहीं, हैं। हमको लगा जैसे HTML में हाईलाइट कराते हैं ना, तो हमको लगा नहीं कि वो नहीं, दोनों तो सेम ही लग वैसा रहा नहीं था, होता है इसमें। HTML और ये क्वेरी जो बना रहे हैं, हम्म नहीं, ये वो दोनों आपको हमको लगा एचटीएमएल कि और सेम सीएसएस है का यूज तो। करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एचटीएमएल सीएसएस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ। नेक्स्ट करें, देखिए अगला है मेरा आपका स्टूडेंट टेबल है। अब उसके अंदर सेलेक्ट। मुझे कोई जो है रिकॉर्ड अपडेट सर करना हो। X3 होगा सर, ये ठीक है, X3 मुझे अब टेबल जो है, 8 लेवल। हाँ, मेरे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, मुझे अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है कि मेरे पास जो है ये जो वो आईडी आईडी नंबर 4 के लिए नेम और रोल जो है वो दूसरा गलत चला गया है। 2 बार हो गया। इसकी जगह ये रोल नंबर, ये आईडी हम लोग किसी और को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। कोई वैल्यू अगर अपडेट करनी हो, वैल्यू, ठीक है, कोई वैल्यू अगर अपडेट करनी हो तो अपडेट कमांड का यूज करते हैं। लेकिन अगर पूरे टेबल को अपडेट करना हो, किस मॉडिफाई करना हो, ऑल्टर करना हो, तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। अभी हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो अगर हमें किसी की वैल्यू अपडेट करनी हो तो वी कैन यूज अपडेट। अपडेट टेबल नेम सेट। अब सेट करना है उस कॉलम में वैल्यू को जो हम अपडेट करना चाह रहे हैं। वेयर id इक्वल्स 4। अब हम नेम सेट कर देते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे नेम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे नेम दे सकते हैं सपोज रमेश। ठीक है, एंड इसका रोल नंबर हम लोग दे सकते हैं 103। वेयर id इक्वल्स 4, राइट? ये हो गया अपडेट। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। Yes, sir. देखिए आपका जो id 4 है उसके लिए नेम जो पहले था वो अब चेंज हो गया। So if you want to update values of any column in a table, we can use update command. ठीक है। Yes, sir. अगला है ऐड कॉलम। अगर ऐड कॉलम करना हो किसी टेबल में मुझे, तो मुझे क्या करना होगा? जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, इसमें मुझे ऐड करना है कोई कॉलम, फॉर एग्जांपल
मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना है, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, varchar भी ले सकते हैं। लेट्स डू वन थिंग, हम लोग यहाँ varchar ले लेते हैं ताकि हम लोग इसमें मल्टी वैल्यू इंसर्ट कर सकें, ठीक है। तो कोई कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? alter command. ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम मेरा क्या है? स्टूडेंट टेबल। सो स्टूडेंट टेबल, देन हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऐड कॉलम मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर का टाइप अपन क्या रखते हैं? varchar सपोज 100, Where? ठीक है। सो अब इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये टेबल ऐड हो गया है। तो हमारे पास मोबाइल नंबर का कॉलम ऐड हो चुका है। अब इसी तरह से अगर मुझे, अभी तो मैंने कॉलम ऐड किया, लेकिन अगर मुझे कॉलम हटाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड की जगह पे सिंपली ड्रॉप कर देंगे और कॉलम का नेम लिख देंगे, बाकी आगे टाइप वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक कमांड से मैंने मोबाइल नंबर ऐड किया, दूसरे कमांड से मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ कॉलम को, ठीक है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या हट गया है। हट गया, ठीक है। अब अगर मुझे टाइप मॉडिफाई करना हो, देन व्हाट वी हैव टू डू? अगेन ऑल्टर, ठीक है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, फिर से ऐड कर देते हैं मोबाइल नंबर को और इसका टाइप मॉडिफाई करते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका टाइप मॉडिफाई करते हैं। सो व्हाट विल डू? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम मोबाइल नंबर, इसका टाइप varchar की जगह हम लोग कर देते हैं इंट। सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर, नहीं 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 नहीं, इसका ये कॉलम लगा दे। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर वो डेटा टाइप क्या लिखा था टाइप की जगह? डेटा टाइप में काम करते हैं, सिंटेक्स एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग किन से पूछने जा रहे हैं? हम लोग पूछने जा रहे हैं वी हैव ए फ्रेंड गूगल, ठीक है। मॉडिफाई गूगल बाबा। कॉलम डेटा टाइप इन H2 डेटाबेस, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी H2 के अंदर कैसे करते हैं हम लोग? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, सेट डेटा टाइप, इज इट? चलो चेक कर लेते हैं, सेट डेटा टाइप, ठीक है। करते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है। अब अपने को क्या करना था? टेबल का हमारा नाम क्या है? स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल, ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नाम था मोबाइल नंबर, कॉलम का नाम है मोबाइल नंबर और इसको हम लोग कर देते हैं इंट। नाउ विल सी कि हमारा ये होता है कि नहीं। डन, परफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग एक बार चेक करते हैं कि क्या इसका टाइप चेंज हो गया है। तो हम लोगों ने इंट किया है, पहले varchar था, राइट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर मेरा मोबाइल नंबर का डेटा टाइप जो है वो इंट हो चुका है, ठीक है। डन, ओके। Yes, sir. पहले इतने का बैकअप रख लेते हैं। सर और ट्रंकेट कमांड का? अभी अभी बस 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 एक एक करके आएंगे, अभी इशारा करेंगे, भूख लगने पे दोनों हाथों से नहीं खाना है, राइट। ये बात है, Yes, sir. ना पेट भरता है ना दिमाग चलता है। नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे वो रेफरेंस नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल गया, बट यहाँ पे देखिए पढ़ाई के लिए तो जितनी भूख हो उतनी अच्छी है। ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। पढ़ाई के मामले में तो ये अच्छी बात है अदिति की पढ़ाई के मामले में जिज्ञासु होना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। चलो तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए अदिति? अपडेट हो गया, ऐड हो गया, ड्रॉप हो गया, मॉडिफाई हो गया, राइट। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा देखते हैं? ट्रंकेट टेबल। तो ट्रंकेट टेबल के लिए क्या कमांड यूज होता है? ट्रंकेट, और हम लोग एक काम, Student name. टेबल, चलो हटा ही देते हैं। स्टूडेंट टेबल,
and Alternate. table. Do we have Mirror. table keyword? ठीक है, हो गया। इसको एक बार रिफ्रेश करके देख यस लो। सर। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, ट्रंकेट की वजह से क्या हुआ, टेबल हटा या सारे रिकॉर्ड्स हटे? रिकॉर्ड्स हटे सर एक बार सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक कीजिए। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। चेक किया जाए, रिफ्रेश किया जाए। ठीक है, तो देखें, आपके सारे हो रहा रिकॉर्ड है रिफ्रेश डिलीट हटा, हो गए। तो हट क्या गया। क्या ये कमांड कुछ ऐसा है जैसे हम लोग डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल करते हैं, ये उससे मिलता जुलता है, फिर मैं ट्रंकेट क्यों यूज करूंगा? यस सर। अगर डिलीट ट्रंकेट इस तरीके सर, अगर ट्रंकेट नहीं यूज डिलीट करेंगे तो सारा टेबल भी हट जाएगा, उसके साथ डेटा नहीं हटेगा। नहीं नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो सर हो काम सकता है बफर, ये सर बोल बताइए। रहे कि हो सकता है बफर नहीं से नहीं ये डेटा नहीं फेच नहीं, करेगा। इसका 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 रीजन ये समझिए, देखिए पहले फास्टर कौन सा है ये डिलीट बताइए। का मतलब सारा हट, क्या सर? इन दोनों में से किसको हम वापस रिवोक कर सकते हैं, यानी रिकवर कर सकते हैं डेटा? ये तो चलिए वो डिलीट को आई क्वेश्चन थिंक। सेशन में अभी हम आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल का मतलब टेबल को डिलीट करने के लिए। डिस्क्राइब होता है टेबल का स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, डिस्क्राइब टेबल, टेबल का नेम आई थिंक यही है। DESC है क्या, DESC? अगर इस तरह के से एरर आए तो आप लोग को PRIV पता, सॉरी, डिस्क्राइब होगा सर। हाँ नहीं होता तो डिस्क्राइब है, लेकिन H2 में क्या है ये देखते हैं, एक मिनट। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो हम लोग किन से बात करेंगे? गूगल बाबा। डिस्क्राइब टेबल कमांड इन H2, डिस्क्राइब टेबल कमांड इन H2। ठीक है, H2 डेटाबेस में। ठीक है, तो ये था आपका, तो डिस्क्राइब ये है DSC। अच्छा ओके, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, schema dot columns where table schema equals this and table name is equals इंफॉर्मेशन to, स्कीमा एंड टेबल्स कॉलम। जरूरत तो नहीं है, टेबल स्कीमा की भी जरूरत नहीं है। This, और डिस्क्राइब की जगह सेलेक्ट ले लिया। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ठीक है, ओके। अब मुझे अगर किसी टेबल का डिटेल देखना हो तो ये सारा कुछ डिस्प्ले कर देगा, है ना, कि टेबल कैटलॉग क्या है, इसमें आप कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके फिर चेक कीजिएगा ये कमांड्स। अभी मैं ये सारे कमांड आपको जो है ना, मैं एक जगह बैकअप रखते जा रहा हूँ, अभी आपको ये सारे कमांड मिल जाएंगे। बट आप प्लीज़ प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा, जो भी डेटाबेस हो आपके पास, और अगर उसमें वो कमांड नहीं रन कर रहा हो तो आप स्पेसिफिक डेटाबेस का नाम देकर जो है सर्च कर लीजिएगा कि MySQL में इसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक कमांड जो है वो दूसरे में मैच कर जाए 100%। किसी में नल के लिए NVL यूज होता है, किसी में नल के लिए COLASC यूज होता है। ठीक है, तो आपको उसका स्पेसिफिक, जैसे MySQL यूज कर रहे हैं तो MySQL के लिए कि इसका MySQL में कैसे होता है, ऐसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। बाकी काम आप लोग लाइक वगैरह आप लोग कर चुके हैं, लाइक पे काम कर चुके हैं ना, लाइक और आई लाइक में क्या डिफरेंस है? ट्रिम लाइक का एक देख लेते हैं, ट्रिम का देख लेते हैं। ठीक है, देखो, सिलेक्ट, सपोज मैं कहता हूँ सिलेक्ट, यहाँ मैंने दे दिया स्पेस, यहाँ पे दे दिया मैंने विकास। ठीक है, और अब मैंने ये दिया
फिर डुअल काम करता है इसमें। ठीक है, अभी आप एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फ्रंट और बैक में जो है नेम दिया गया है अलग, मतलब स्पेस आ रहा है ना, है कि नहीं। अब अगर मैं इसको कर दूं ट्रिम, सर समझ में आया डिफरेंस? ब्रैकेट लगा देने यस से सर। इसका स्पेस हट गया। नहीं, हाँ, ट्रिम कमांड यूज करने से जो अननेसेसरी के स्पेस हैं आगे और पीछे के, उसको इंटेलिजेंटली वो इसने एडजस्ट हो गया। हटा दिया। ठीक है, बाकी एवरेज फंक्शंस वगैरह तो सम, मीन, ये सब तो जानते ही आप लोग। सम किस लिए यूज होता है? हम्म, सिलेक्ट सम, अगर मान लीजिए जोड़ने के लिए। दो कॉलम में समेशन कुछ के लिए, वैल्यू ऐड होता करने है। के लिए। हाँ, इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो मेरे कॉलम में वैल्यू होता है 1+2, तो हम यहाँ 1+2 की जगह कॉलम का नेम भी दे सकते हैं टेबल के साथ, तो ये बेसिकली उनको ऐड करने का काम करेगा। ठीक है, एवरेज, ये सब मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, है ना। ट्रिम, डेट ऑपरेशन, ऑपरेशंस एंड डेट सब ऑपरेशंस, सब सब क्वेरीज क्या होती है? क्वेरीज एंड ऑफ सब टेबल। क्वेरीज क्या होती है? सब क्वेरीज, सर वैसी क्वेरीज जो क्वेरीज के अंदर लिखी जाती है, बिल्कुल यूजिंग सम काइंड ऑफ क्लॉजेस। ठीक है। जैसे हम लोग जरा देखते हैं कि किसी टेबल में यहाँ पे वैल्यू है कि नहीं। सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, एक बार देखते हैं स्टेट्स के अंदर है वैल्यू। सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टेट्स, नहीं इसके अंदर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। बुक्स के अंदर देखते हैं, बुक्स के अंदर है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक टेबल है बुक, जिसमें है बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस। ठीक है, और एक कॉलम है मेरा स्टूडेंट टेबल। ठीक है, इसके अंदर है मेरा मेरा है, अच्छा अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं है। एक काम करते हैं, कुछ रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, इसमें अपन कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। चलो, पहला रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया। ठीक है, अभी इसके अंदर हमारे पास, अब ये इंसर्ट वाला कमांड हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं स्टूडेंट टेबल में कितने रिकॉर्ड हो गए। 3 रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, और हमारे बुक्स में है ये। ठीक है, तो एक तो देखो, सब तरीका ये है सब क्वेरी का कि एक क्वेरी ये है, ठीक है, और एक इसके साथ बिना किसी दोनों टेबल के रिलेशन के हम डायरेक्ट निकाल दें कि सिलेक्ट बुक नेम फ्रॉम बुक्स। ठीक है, वेयर बुक आईडी इक्वल्स 5444। ठीक है, तो अभी देखो आ गया, है यस ना। सर। तो ये हो गया मेरा सब क्वेरी की, एक क्वेरी के अंदर मैंने एक एडिशनल क्वेरी लिखी। अब यहाँ पे दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो ये जो टेबल है ये इस पे डिपेंडेंट हो या फिर ना हो। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, कोई आईडी मैच कर रही है, तो उस केस में हम लोग ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। सॉरी, लाइट गोन, आई थिंक कुछ आज वर्क चल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, थोड़ी देर में आपका स्क्रीन फिर से गायब हो जाएगा। नहीं, अभी तो दिख रहा है सर, अभी तो दिख रहा है। ठीक है, सो तो अब अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, ज्वाइन स्टूडेंट के लिए सपोज ना, बुक्स है, ज्वाइन का मतलब हो गया कि दो टेबल के बीच में कोई की स्टैब्लिश करके कॉमन, और उन दोनों के बीच से डेटा गेट करना। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं कुछ कि नहीं? क्या सर? यस सर। जैसे अगर मुझे दो टेबल से प्राइमरी की और उसका कंसेप्ट निकालना है, ठीक है, यस सर। चलो इसको आप लोग खुद से करोगे ज्वाइन को। ठीक है, ज्वाइन क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप लोग खुद से पढ़ो, और ये आप लोग का ठीक असाइनमेंट है कि ठीक आप है सर। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स बनाकर आप लोग ग्रुप पे सेंड करेंगे।
ज्वाइन ज्वाइन आप के लोग, ऊपर। हाँ, ज्वाइन के ऊपर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसके बाद आप लोग इसको ग्रुप में शेयर करेंगे। देखते हैं यस किसका नोट्स कितना बेहतर है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना यस है। ज्वाइन ओके क्या सर। होता है, ज्वाइन, ठीक है, कितने टाइप के हैं ज्वाइन, और हर एक का एक एग्जाम्पल। ये तो सर मतलब AR मॉडल के ही अंदर आएगा। नहीं नहीं, ज्वाइन जैसे लेफ्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो गया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया, राइट आउट, ये चीज आपको, ठीक है, थोड़ा, यस सर यस। सॉरी वो बात करते करते कभी कभी आए थे वो आज। हम्म, वो खैर, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं वो सुबह से आदमी 7 बजे से निकला हुआ आदमी थक जाता है कभी कभी। आज कुछ ज़्यादा ही यस सर यस। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। खैर, तो एक तो दिल्ली नोएडा की ट्रैफिक इतनी इतनी खराब है, इतनी खराब है कि आधी जिंदगी अभी आदमी की आप ट्रैफिक नोएडा में में हैं निकल सर? जाती है। अभी आप नोएडा में हैं सर? मैं अभी नोएडा में हूँ, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ, इतनी ज़्यादा। उधर आएंगे कभी। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, वेलकम है, आप आइए तो इन्फॉर्म जरूर कीजिए, है ना। ठीक है, देखेंगे थोड़ा माहौल उधर का। नहीं बिल्कुल आइए, माहौल बढ़िया है, माहौल में कोई खराबी नहीं है, बस ये है कि ट्रैफिक और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और आप लोग जहाँ से हैं वहाँ अगर, जैसे स्मॉल टाउन है, ठीक है, और वहाँ पे आप गाड़ियाँ नोएडा कम में हैं। किस जगह रहते हैं सर? मैं नोएडा में सेक्टर 71 में स्टे करता हूँ। सेक्टर मेट्रो 70। स्टेशन, हाँ, सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने है, मतलब मेरे यहाँ से वॉकिंग है, मेट्रो सामने से दिखता है। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा पॉश कॉलोनीज में आता है, इसलिए ट्रैफिक भी ज़्यादा है थोड़ा। खैर, अ, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग प्लीज उसको बताइएगा। ये व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप लोगों को पढ़ाया गया। यस सर। यस सर ठीक है, एडवांटेज के बारे में। यस सर यस। यस सर। ठीक है, डीबीएमएस आरडीबीएमएस के बीच में डिफरेंस। यस सर यस सर। ठीक है, प्राइमरी की क्या है ये बताया गया। यस सर। ओके, एसिड प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी, यस कंसिस्टेंसी, सर। यस सर आइसोलेशन, यस ड्यूरेबिलिटी। सर अब ये तो ओके, इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा कम बताया गया है ना। इंडेक्शन फॉर्म। हाँ, देखिए, इंडेक्सिंग के बारे में जब भी कुछ पूछा जाए तो दो तीन चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखना है। एक तो ये कि इंडेक्सिंग इज यूज टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस ऑफ द रिट्रीवल ऑफ द डेटा। ठीक है, डेटाबेस से डेटा को पुल करते समय परफॉर्मेंस उसकी बेटर हो, स्पीडली वो आपको प्रोवाइड कर सके डेटा, इसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। ऐसा कौन सा की है जिसको जब हम टेबल में अटैच करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स क्रिएट करता है, अभी आप लोगों ने देखा था। क्या बोले सर एक बार सर? सर प्राइमरी की। सर प्राइमरी, प्राइमरी की प्राइमरी जे। की। क्वेश्चन ये था विकास कि हम लोग कौन सी की जनरेट करते हैं टेबल में जिससे वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्रिएट करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब प्राइमरी की बनाया था आईडी को, तो उसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हो गई थी। ठीक है, ये यस उसके सर यस। टाइप्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है फॉरेन की, बता दिया गया आई थिंक। ट्रांजेक्शंस, ठीक है, कि ट्रांजेक्शन के स्टेट्स बेसिकली कि कमिटेड और रोल बैक। कमिटेड का मतलब एक बार जो चेंजेस परमानेंटली हो गए और डेटाबेस में सेव हो गए, तो मतलब कमिटेड। अगर इन बिटवीन ट्रांजेक्शन क्वेरी करते वक्त कोई एरर आया, आपने उसको रोल बैक कर लिया। ठीक है, तो कमिट और इवन आप लोग अभी जेडीबीसी कनेक्शन का पढ़ रहे होंगे, कनेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को कमिट और रोल बैक भी बताया जा रहा होगा। यस सर। ठीक है, डिलीट और ट्रंकेट, ये बेसिकली ये वाला मैंने आप लोगों से शेयर कर रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर मुझे याद है तो ये इंटरव्यू जो है, ये नोट जो है मैंने आप लोगों से शेयर कर रखा है ऑलरेडी। यस सर। हाँ, तो डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, देन वी हैव स्टोर्ड प्रोसीजर, ये सारे टेक महिंद्रा और अच्छी अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जा चुके क्वेश्चन है, वहीं से पिक किए सर गए। एक क्वेश्चन था सर। बताइए। हम लोग इतना पढ़ते हैं लेकिन मतलब जो थी, सॉरी सर,
हम लोग इतना पढ़ते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो जो इंटरव्यू वाले आते हैं तो अपना पैकेज कम लेकर के क्यों आते हैं सर? एक मिनट। थैंक यू सर।